when we are going to see this book and we are going to read this book, we'll know some hidden stories and some new facts about war of Indian independence. A book are just pieces of words put together which tells a story. And a story can, it's an vision of a writer, but also it's a form of a narrative. There's so many stories which we have heard from the past, but sometimes in the sands of time, the stories gets missing. So India is such a wide country, Bharat itna vishal desh hai, कि if we start, one life is not enough. Someone told me, एक जीवन काफ़ी नहीं है पूरा इंडिया भारत को देखने के लिए. Which means that there's so many stories at different part of the countries. Now, to bring one such story of Sidhu Kano to life, this is the story which Tuhinji bought in the concept and said that let us try to see this place. And it was so difficult to get information because everywhere the same information was looped and looped in. And to think about, to go back to 1855, that period, an era where the life was very simple, straightforward, and yet the idea of freedom was active and alive. Because in the end, it simply means that freedom is an idea which always stayed with the humans. No one likes oppression, no matter who or what they are. And that's where the Santal Hul revolution started, with a simple idea of freedom. So with a lot of creativity insights, we patched together the story. In 20 years I've worked in consulting analytics. There's a concept known as synthetic data, which is basically, there's real world data, which is the primary research. But there's synthetic data, which is basically, if things are not clear, we need to fill in the gaps. So by taking the real world information of Sidhu Kano history, we saw a lot of gaps. So within this gap, we have filled as best as what we could, because there's always, if you see any revolution, there's an idea, there's a rise, there's a plateau, and there's a fall. So we filled in those gaps with those data and wrote the story in a form which is easily read. Hopefully, in time, in our school books, the story of the 4 brothers and 2 sisters will come forward, and we shall all understand. And we keep saying this, all of us come from different parts of the country. Our parents may be from different states and all. Everywhere there's a story. Why not look in the past and bring the story forward? And that's our mission out here. तो ये पुस्तक सिद्धू कानो जो है वो उस भूल को सुधारने का एक विनम्र प्रयास है. बहुत सारी चीज़ें जो हैं 2014 के बाद बदली. मेरी यात्रा, इन पुस्तकों को लिखने की जो यात्रा है वो कहाँ से आरंभ हुई मैं आपको बताता हूँ. मेरा जन्म जो है वो जमशेदपुर में हुआ है. प्रारंभिक 18 वर्ष मैंने जमशेदपुर में बिताए. वो एक ऐसा इलाका है जहाँ अगर आप 4-5 किलोमीटर जाएं तो कहीं ना कहीं आपको बिरसा नगर बस्ती दिखेगी, तो कहीं ना कहीं आपको बिरसा मुंडा चौक दिखेगा. तो एक नेचुरल जिज्ञासा थी बिरसा मुंडा के बारे में जानने की. लेकिन जो प्रारंभिक स्रोत थे उनके बारे में जानकारी इतने कम थे कि मुझे 10 पुस्तकें मैंने जब लिख ली, राजनीति में प्रवक्ता के तौर पर स्थापित हो चुका था, तब मेरे जहन में आया कि अब अगर मैं इस विषय पर नहीं लिखूं, अब इस विषय पर अध्ययन नहीं करूं, तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा. तो ये यात्रा मेरी जो है लेखक के तौर पर, इन तीन विषय हमने लिए. एक ट्रायलॉजी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में. पहली पुस्तक उस कड़ी में थी द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, क्योंकि बिरसा मुंडा जो है आज भी जो उनका आंदोलन था, वो देखिए जो ट्राइबल रेवोल्यूशंस हैं वो लगभग 1765 से चले आ रहे हैं, और लगभग उसी क्षेत्र में उड़ीसा, जो ये सब बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे, तो 1765 से चले आ रहे हैं और लगभग 1947 तक, जब तक आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी तब तक थे. बिरसा मुंडा जो है वो कहीं बीच में आते थे. इसमें भी एक विचित्र बात यह है कि 1850 के पहले जो क्रांति होती थी, पहले जो आंदोलन होती थी, उसका मुख्य कारण होता था आर्थिक प्रताड़ना. अर्थात जो अंग्रेजों की जो प्रताड़ना होती थी ट्राइबल क्षेत्र में, वो ज़मींदार और मनी लेंडर्स के थ्रू होती थी. तरह तरह के टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे, और अंततः ट्राइबल जो हमारे जनजातीय समूह हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था बजाय इसके कि क्रांति के पथ पर अग्रसर हो. 1850 के बाद
इन क्रांतियों का स्वरूप थोड़ा बदला। आर्थिक प्रताड़ना के साथ साथ एक प्रकार से सांस्कृतिक प्रताड़ना का आरंभ हुआ। जर्मन मिशनरी के लगभग 1000 पादरियों को एक प्लान के तहत, एक योजना के तहत रांची के आसपास बसाया गया और उनको जो है साल के टारगेट्स दिए जाने लगे कि आपको इतने परिवारों को कन्वर्ट करना है। तो 1850 के बाद जो जनजातीय क्रांति हुई है वो आर्थिक प्रताड़ना के साथ साथ उनका कारण काफ़ी हद तक सांस्कृतिक प्रताड़ना भी था, कन्वर्जन का था। तो बिरसा मुंडा का जो रेवोल्यूशन था वो मूल तौर पर फादर हॉफमैन के विरुद्ध था। संथाल ये जो 1855 का रेवोल्यूशन था वो प्राइमरीली जो था, जो जमींदार और मनी लेंडर्स प्रताड़ना करते थे उसके विरुद्ध था। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि जब ये युद्ध आरंभ हुआ था ये एक कम्युनिटी प्रयास था। ये कोई मतलब एक परिवार था जो मौजूदा भोगनाडी इलाका है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में, एक परिवार था जो पूरी तरह से त्रस्त हो चुका था। 4 भाई सिद्धो, कानो, चांद, भैरव और 2 बहनें फूलो और जानो, सबके अपने अपने परिवार थे। उम्र भी काफ़ी 30 से ऊपर थे, लेकिन सब ने ये सामूहिक निर्णय लिया कि अगर हम इस वक्त इस प्रताड़ना के विरुद्ध खड़े नहीं होंगे तो आगे जो है हमारी जो दशा है वो बिगड़ती जाएगी। और अंततः 8-9 महीने के दरमियान, जैसे आज हम 10 अगस्त के आसपास हैं, इस क्रांति का आरंभ 30 जून 1855 में हुआ था और आज लगभग 10-11 अगस्त के आसपास जो है सिद्धू की हत्या हुई थी, जो पहला भाई था, जो सबसे बड़ा भाई था। उसके बाद कुछ हफ्तों तक ये थम जाता था। फिर जब बात फैलती थी इस आंदोलन की दूसरे गांव में, तो आज के जो भागलपुर क्षेत्र है बिहार के अंदर, वहाँ से लेकर झारखंड के कई डिस्ट्रिक्ट्स, राजमहल, गोड्डा, दुमका और बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये जो स्तर था, जो जिस मैग्नीट्यूड का रेवोल्यूशन था वो इतना भव्य था कि इस वजह से हमने उसको एक संज्ञा दी है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बैजन जी इस पर और प्रकाश डालेंगे, उनकी मत कुछ अलग है इस पर, वो मुझे बता रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये वक्त आया है कि आप और प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिससे कि ये अनसंग वॉरियर्स को जो है उनकी भूमिका मेन स्ट्रीम की जाए। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है किताबों के ज़रिए। एक और कारण है कि हमने ये किताबें लिखी। देखिए कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जो अब हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ही बांटना शुरू कर चुके हैं। तो जब उनका मन करता है वो कुछ सावरकर के खिलाफ कह देते हैं। तो इससे पहले कि उनकी ज़रूरत हो कि वो हमारे जनजातीय योद्धाओं के खिलाफ कुछ कहे, हमने सोचा कि एक नैरेटिव पूरी तरह से तैयार कर दें कि हमारी आज़ादी की लड़ाई, हमारा स्वतंत्रता संग्राम किसी भी एक विचारधारा की जागीर नहीं थी। ये संग्राम जो है कांग्रेस की स्थापना से 100 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी और हर एक व्यक्ति जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया है उसको उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए इतिहास में। सिद्धू कानू के बारे में हम चर्चा करने के पहले मेरे मन में मलाल है कुछ चीज़ों का। मैं मानता हूं कि सुदूर इलाका से मैं आता हूं। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म उस प्रदेश में जो हुआ है जहां पर सिद्धू कानू का जन्म हुआ है। मेरे मन में मलाल है कुछ चीज़ों को। मलाल इस बात का है कि सुदूर इलाका, आदिवासी इलाका, वंचित इलाका, जो समाज के सबसे नीचे पैदान पर बैठा हुआ इलाका है, उन इलाकों में क्रांतियां हुई आज़ादी के पाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन इतिहासकारों ने उन महापुरुषों को, उन क्रांतिकारियों को स्थान नहीं दिया है। अन्याय किया इतिहासकारों ने। और पता नहीं, मैं भी आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला हूं और विजयंत पंडा जी भी बैठे हुए हमारे पड़ोस के देश के, पड़ोस के राज्य के। उनके भी कला, संस्कृति और इतिहास में एक समृद्ध राज्य है। पता नहीं, खास करके ईस्टर्न जोन के जो इलाके हैं वहाँ पर कई क्रांतियाँ हुई, लेकिन उन क्रांतियों को इतिहासकारों ने स्थान इसलिए नहीं दिया क्योंकि आज़ादी की जो इतिहास लिखी गई वह एक सत्ताधारी दल के इशारे पर लिखी गई और अपने परिवार की गौरव गाथा लिखने का बाध्य किया गया। एक कारण मैं ये समझता हूँ
लेकिन सच में ये बड़ा दुखदाई विषय है। लेकिन आज ये इस विषय का चर्चा करने का विषय नहीं है, लेकिन इतना मेरे मन में मलाल था इसलिए मैंने व्यक्त किया। लेकिन जिस सिद्धू कान्हू की बात करने के लिए हम खड़े हैं, मैं जानता हूं कि झारखंड और जनजातीय क्षेत्र में अंग्रेज़ों का जैसे प्रभाव हुआ और अंग्रेज़ों के प्रभाव के साथ साथ वहाँ पर जिस प्रकार के शोषण की प्रवृत्ति हुई, उसके खिलाफ अगर सच में पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया और अंग्रेज़ों के को मजबूर कर दिया अपने क्षेत्र में कई स्थानों पर छोड़ने के लिए, राज करने के लिए, तो वो स्थान ऐसे कई आदिवासी क्षेत्रीय रहा है। उसी में से एक झारखंड में हम कह सकते हैं कि 1779 से लेकर के 1831-32 तक अंग्रेजों का पूरा प्रभाव आ चुका था। और साथ साथ उसी समय में वहाँ पर ऐसे कई झारखंड में, हम नाम भी उल्लेख करना चाहते हैं कि उसी कालखंड में, हम 2 मिनट बोले और कोई समय 2 मिनट लेना, तो भगवान वीर बुद्धू भगत को हमें स्मरण करते हैं कि सबसे पहले झारखंड के, अगर बाकी चर्चा होंगी देश की, लेकिन झारखंड में सबसे पहले 1832 में वीर बुद्धू भगत निकल करके आंदोलन में भाग लिए और अंग्रेजों को बाध्य किए अपने यहाँ से भागने के लिए। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ते गया। मैं तय कहना चाहता हूँ कि 1756 से लेकर अंग्रेजों का आधिपत्य और बढ़ते चला गया और आज जिसकी चर्चा हो रही है उस संथाल हूल की चर्चा हुई। हूल का मतलब क्रांति, क्रांति, उसको संथाली शब्द में हूल कहा जा सकता है। वो आंदोलन है, क्रांति। तो संथालियों के बीच में भी अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है शोषण की पराकाष्ठा करने का काम किया और महाजनी व्यवस्था वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रही। और जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने मालगुजारी को बढ़ाने का काम किया और मालगुजारी न देने पर वहाँ पर अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार से गरीब आदिवासियों के घर को सिंगरा का मतलब है जलाने का काम किया, तो इसके खिलाफ सिद्धू कान्हू मात्र बहुत नौजवान था, एकदम नौजवान, और हमको लगता है कि 35 वर्ष की उम्र रही होगी। क्या समीर जी? 35 वर्ष की उम्र में पूरा परिवार, शायद देश के इतिहास में एक पहला परिवार होगा, जैसा मैं मानता हूं, मुझे बहुत जानकारी नहीं है लेकिन मेरा दावा है कि एक ऐसा परिवार जो सिद्धू कान्हू, दोनों भाई, चांद भैरव, चारों भाई मिलकर के आंदोलन के अगुवा बने। केवल 4 भाई नहीं बने बल्कि फूलो झानो, उनकी 2 बहनें थी, 4 भाई और 2 बहन, उम्र 30 से लेकर के 35 वर्ष, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। और संघर्ष में हम कह सकते हैं कि पूरे संथाल परना, जो उस वक्त भागलपुर का इलाका को इलाका कहते हैं, बिहार झारखंड एक था, तो उन्होंने भोगनाडीह एक जगह है साहेबगंज में, झारखंड में, और वहीं पर स्थल तय हुआ और उस वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करने का संकल्प, क्रांति करने का संकल्प लोगों के द्वारा लिया गया। और हम जानते हैं कि उस वक्त कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई दूसरे संचार के संसाधन नहीं थे, इसलिए वहाँ डुगडुगी बजा करके, डुगडुगी एक हमारे यहाँ प्रथा है डुगडुगी बजाने का, जिसको आप ढोलक कह सकते हैं, डुगडुगी बजा करके और पूरे इस इलाके में जन जागरण का काम किया, जनसंपर्क अभियान करने का काम किया और साथ साथ में क्रांति की बीज बोने का भी काम किया। इतना ही नहीं, साल का पेड़ हमारे यहाँ होता है, साल के पेड़ पर हम सब लोगों की बहुत बड़ी धार्मिक आस्था है। हमारी बहनें भी जब भाइयों के दुआ करती है जीवन के लिए, तो साल के वृक्ष को सामने रख करके उसकी पूजा करती है और उसी साल के पेड़ के टहनी और पत्तों को लेकर के हर घर में संकल्प दिलाने का काम किया गया कि ये वृक्ष हमारी प्रकृति के देवता हैं और इसी को संकल्प लेकर के हम सब लोग एक रास्ता निकालें
कि एक बार अंग्रेजों के खिलाफ हम सब लोग पूरी ताकत से संघर्ष करने का काम करेंगे। ये कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन उस वक्त का सबसे बड़ा संसाधन का उन्होंने उपयोग किया, समाज की एकात्मता को जोड़ने के लिए, समाज की समरसता को जोड़ने के लिए। अकेले ये आंदोलन आदिवासियों का नहीं था, गैर आदिवासी भी इस आंदोलन में पूरी तरह से शरीक हुए। इसलिए हम सबको जानते हैं कि सभा को लाने में हम लोगों के यहाँ माझी होता है, परगना सिस्टम होता है, उसके साथ उनको पूरी तरह से जोड़ने का काम किया। और वहाँ पर देवता है, उसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर संथाली जो देवता है उसको मुरांग बुरु कहते हैं, मुरांग बुरु। और मुरांग बुरु सबसे बड़े देवता हैं संथाली समाज, जो आदिवासी समाज है, सबसे बड़ी जनसंख्या संथाली समाज की है, उसके देवता को पूजने का जो हम लोग संकल्प लेते हैं, पूजा करते हैं वहाँ के संथाली, उसको मुरांग बुरु कहते हैं। और मुरांग बुरु और जाहिर, जाहिर मतलब हो गया देवी, और दोनों के सामने पूरे समाज ने संकल्प लिया। जहाँ कम्युनिकेशन का साधन बनाया साल के पेड़ से डुगडुगी बजा करके, तो दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि संकल्प भी लिया गया। तो ऐसे देवी और देवता के सामने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसको हम कह सकते हैं, का अनूठा उदाहरण ये आंदोलन में देखने को मिला। और समय का अभाव है, इसलिए मेरा समय भी हमको लगता है समाप्त हो चुका है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि समाज को जोड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया। और हम सबको जानते हैं क्रांतियाँ होती हैं, आंदोलन होता है, तो उसमें कुछ गद्दार भी होते हैं। उन गद्दारों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के दोनों भाई को अलग अलग, एक भाई को तो गोली मार करके हत्या की गई, कानू को, सिद्धू को फांसी देने की काम किया गया भुगनाडी में, और फिर दोनों बहनों की हत्या की गई। इस प्रकार से ऐसे वीरों के बारे में हमारे तुहिन जी ने पुस्तक लिखा है। मैं धरती, झारखंड की धरती से इनको नमन करता हूँ। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा को इन्होंने पूरे दुनिया में स्थापित करने के लिए अपने कलम के ताकत का उपयोग किया। तो संथाल भले होंगे सिद्धू कानू, लेकिन सिद्धू कानू को भी भारत में नहीं दुनिया में स्थापित करके हम सब लोगों के जो महापुरुष हैं, वो हम सब लोगों के आदर्श कैसे थे, उनके आदर्शों पर कैसे हम सब चलें, इसके लिए इनकी जो कलम चली हैं, उन कलम के प्रति भी मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो रही थी उस समय, कैसे कैसे देश के कोने कोने से हमारे देश के देशभक्तों ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी महती भूमिका निभाया था। इसी में देश के अंदर जनजातीय समुदाय के भी हमारे बहुत से ऐसे वीर क्रांतिकारी पैदा हुए, जिन लोगों ने कि देश की आज़ादी के लिए सब चीज़ न्यौछावर करते हुए आज़ादी दिलाने का काम किया है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरो, फूलो झानो, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के केरल के जादो नाग, तात्या भील, शंकर शाह, भीमा नायक से लेकर के असम और नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर जैसे जगहों से रानी माँ गैडेल्यू जैसे हमारे जनजाति महापुरुषों ने देश के कोने कोने से अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई। स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 से लोग मानते हैं, लेकिन उसके पहले ये जनजाति क्रांतिकारी वीरों ने 1784 में तिलका मांझी ने भागलपुर के अंदर पहला बिगुल फूंका था। हमारे आदरणीय दीपक प्रकाश जी ने कहा 1825 से झारखंड के वीर बुद्धू भगत ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। ऐसे ही
हमारे सिद्धू कान्हू ने 1855 में संथाल परगना झारखंड के बरहेट के एक भोगनाडी से प्रारंभ किया। उन दिनों में संसाधनों का अभाव था, संचार व्यवस्था नहीं था। इसके बावजूद ये 30 जून 1855 को आज के झारखंड, बिहार, बंगाल ऐसे 400-500 गांव से लोग वहाँ पर एकत्र हुए और लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 50,000 से भी ज़्यादा वहाँ लोगों ने एकत्र हुआ और अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिगुल फूंका, हूल किया, क्रांति का आगाज दिया और अपने सशक्त होने का, एकजुट होकर के अंग्रेज़ों को भगाने का शुरुआत किया। उस समय अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा हजारों लोगों की हत्या वहाँ की गई और ये सिद्धू कान्हू जी को घोड़ा में बांध करके घसीटते बरहेट के एक पंचकटिया नाम की जगह है, उस पंचकटिया में एक बरगद के पेड़ पर फांसी लगा दी गई। वहाँ उस समय महाजनों के खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया, इसलिए कि अंग्रेज और महाजन मिल करके वहाँ जो है अत्याचार, शोषण करने का काम कर रहा था। इसलिए वो अचानक जो है यह जो है स्वतंत्रता की लड़ाई भी थी और वहाँ के लोगों का अत्याचार भी हो रहा था। चूँकि वहाँ के जो परंपरागत जो व्यवस्था है उसके साथ साथ जल जंगल जमीन का अधिकार भी इन लोगों के जो आधार है इसको छीनने का काम हो रहा है। इस प्रकार से वहाँ कार्य हो रहा था। सारी व्यवस्थाएं अंग्रेज अपने अधीन करना चाहते थे। ऐसे सारे बातों को लेकर के इस प्रकार से हूल क्रांति प्रारंभ हुआ। निश्चित रूप से उन दिनों में आत्मनिर्भर, स्वावलंबन, सशक्त होकर के अपना देश, अपना समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर अगर विचार हुआ तो उस समय से ऐसे महापुरुषों के माध्यम से हुआ और ऐसे अधीनों को किसी भी प्रकार से हम नहीं जाने देंगे, समाज को वंचित नहीं होने देंगे। इस प्रकार से सोच रखते हुए, विचार करते हुए ऐसे प्रारंभ हुए हैं। आज हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। ऐसे ही मूर्धन्य क्रांतिकारी वीरों के कारण आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक होकर के यहाँ पर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से ये सारी बातें बहुत ही मार्मिक भाव के साथ हम सबों को विचार करते हुए प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। श्रीमान तुहिन जी ने जिस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवनी और उपलब्धियों को अपने पुस्तक के माध्यम से हम सबों को बताने का काम किया है, आज के नए पीढ़ी के लोग इन सारे बातों को समझते हुए कैसे हम देश के प्रति, समाज के प्रति हमारी भी भूमिका कैसे हो सकती है, यह प्रेरणा लेने का विषय है। और निश्चित रूप से आज हम देख रहे हैं कि इसके माध्यम से कई हमारे युवा आज प्रेरित होकर के ऐसे समाज क्षेत्र के कार्यों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों में जो भी कारण रहा होगा, ऐसे हमारे
अनसंग हीरोज को लोगों ने ठीक से उस समय के पीढ़ियों को बताने का काम नहीं किया, जबकि ये उस समय के विषम परिस्थितियों में अपनी भूमिका किस प्रकार से ईमानदारी पूर्वक राष्ट्रभक्ति के भाव से उन लोगों ने जो अपना कार्य किया है, ये हमारे समाज में अगर हम सभी लोगों को मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति हमको क्या भूमिका निभाना होगा, यह अनुभूति के साथ आगे हम सब बढ़ सकते हैं। हमारे बीच में आदरणीय वैजयंत जी पंडा उपस्थित हैं, वरिष्ठ हैं, जानकार हैं, हम सबों को मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन आज के दिन में हम सबों को ऐसे बातों का प्रेरणा लेते हुए समाज क्षेत्र में सभी लोगों को आगे आना चाहिए। ये जो असली कहानी सिद्धो और कान्हू के और उनके और भी दो भाई और बहन के और उन हज़ारों जनजाति समाज के लोग जो उनके साथ देकर अंग्रेज़ों के खिलाफ ये युद्ध लड़े थे, ये मैं मानता हूँ कि तुहिन जी ने और सूरज जी ने they have done us an immense service by bringing out, this is a trilogy, as I understand. Tuhin ji has been involved in writing histories of Birsa Munda ji and now this is the third book. The reason I consider this important is that if you look at the history of India's freedom struggle and post-independence contributions to nation building, there are large gaps. Just like Suraj ji was pointing out, large gaps in information available which has to be filled in with whatever facts they could gather. Similarly, if you look at the history of modern India, it gives an impression as if only a certain group of people have struggled for India, only a certain few families have shaped India. Whereas Tuhinji put it very well when he said that the freedom struggle was not limited to any one particular stream of Indians. It involved people from every section of society, from different backgrounds with different objectives, but they had one common objective, and that was freedom. जब हम स्वाधीनता के बारे चर्चा करते हैं, जो सबसे बड़ा क्रांति, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहा जाता है 1857 का, वो तो बहुत ही बड़ा था. दैट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट. परंतु ये 2 साल उससे पहले आज के झारखंड में जो ये युद्ध लड़ा गया, इसको आपने जो कहा कि मेरा एक इशू है रिगार्डिंग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मेरे पहले विभिन्न वक्तों ने ये कहा कि विभिन्न प्रकार के आंदोलन रहे, राइट फ्रॉम द 18th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी टिल मिड 19th सेंचुरी. मैं जहाँ से हूँ उड़ीसा में 1812 में पाइकर रिबेलियन करके एक वॉर था, युद्ध था, वो भी काफ़ी बड़ा था. उसका भी दावा रहा टू बी रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट रेवोल्यूशंस. लेकिन मैं मानता हूँ कि इन सब आंदोलन जो हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ पहलू रहा है. तो इस पर हम ज़्यादा बहस ना करके, each of these freedom struggles have certain unique aspects which we need to appreciate and understand. जैसे कि ये जो लड़ाई था, ये साहूकार महाजन मनी लेंडर्स के विरोध था, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज अगेंस्ट द colonial rule because they represented, these money lenders represented the colonials. I got to read in the book the colonial regime for
extortionate tax collection. Other freedom struggles had different triggers or different immediate concerns, but they all had that same goal of freedom. But when we talk of freedom, which we achieved in 1947, and we are just about to have the 75th इंडिपेंडेंस डे, इसको अमृत महोत्सव के नाम से हम मना रहे हैं, और इसके बाद जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो आज के दिन पूरे दुनिया में बार बार लगातार सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, all kinds of surveys show that every month. The vision that he has shaped for us of Amrit Kal, next 25 years, the India at 100 years of independence will be a developed India with becoming a great force for good in the world, which it has already started becoming. Although we have achieved freedom, we have achieved self-rule, we are yet, in my mind, to achieve freedom in the full sense. ये सब जो विभिन्न आंदोलन थे, they had different root causes, but they all aimed for freedom, and that fundamental freedom is freedom of the mind. Even today, we have large sections of our society who, although they live in a free country, in a free society, in the largest democracy that human history has ever seen, they are still not truly free. They are still controlled by a colonial mindset. Only recently you have seen some people who pass themselves off as journalists or intellectuals have been caught out. Caught out not just in India, but internationally, in one of the most well-known newspapers of the world, for having been taking money from other countries to belittle our own country. If this is not a colonial mindset, what is? ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे कि अब भी वो कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं that we are doing something good, that some good is happening in India. Yes, we have many challenges. We inherited a situation of devastated economy, going from the largest economy in the world to a shattered country which had to rebuild itself. Today, we are the fastest growing economy. We are the 5th largest economy in the world, but most importantly, we have transformed in our mind and in our physical reality and in our capability that today's India is not the India of just 10 years ago or 20, 30 years ago that needed help from other countries to solve its own problems. Today's India is an India that helps other countries solve the problems and solve the problems of the entire world. We saw this during the COVID pandemic. The largest vaccination campaign in the history of the world, conducted in the shortest time frame. And apart from vaccinating everybody in the country free of cost, to give hundreds of millions of vaccine doses to other countries, to help more than 100 other countries with vaccines, with other kinds of medical aid, and after the pandemic, to give many other countries financial help. The whole world has been reeling after the pandemic. Even India has been affected. But India's performance in dealing with the pandemic, India's performance in dealing with the consequences of the pandemic, economic consequences, is being praised around the world as the best. And the help that we have given to our neighbors, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Afghanistan, countries in Africa, is being recognized. And this transformation of a new India with a youthful demographic, which is an aspirational demographic of the largest number of human beings of working age in the world, is bringing about this transformation. And I believe this transformation represents that true independence
independence of thought, independence of conviction, and not believing that we are inherently inferior, that we must continue to diss our own country and get paid by other countries for it. That transformation is still in its final stages, and we are seeing some phenomenal results happening. But we must never forget that its roots lie in the many examples of bravery and the lakhs of lives lost to bring us to this state, to this situation. We couldn't have come to this point of finally shedding our colonial legacy, not just the physical shackles of governance and rule, but the mental and psychological shackles. गुलामी हम छोड़ चुके हैं, लेकिन गुलामी का मानसिकता अभी भी थोड़ा बाकी है, उसको हम वी आर ओवरकमिंग दैट. तो सिद्धो और कान्हू जैसे कहानियाँ जो हमारी इतिहास में मिटा दिए गए हैं, जानबूझकर सिलेबस में नहीं रखे गए हैं, जानबूझकर बहुत सारे ऐसे कहानी हमें पढ़ने को नहीं मिलता है. हम स्कूल किताबों में जब देखते हैं, ये हमें पढ़ने को नहीं मिला था. और इसीलिए मैं तुहिन जी का और सूरज जी का फिर से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे हमारे इतिहास, ऐसे असली कहानियाँ की रिसर्च करके पेश किए हैं ऐसे किताब. इट्स वेरी रीडेबल, इट इज़ वेरी एक्सेसिबल. Even a school child can read it and enjoy it, and even a very senior academic researcher can also read it and enjoy it. This is a new school of rediscovering and sharing our own history, which has been lost. And in this new school of a new breed of young Indians, aspirational Indians, who believe in the force for good that India is, and who believe that the roots of that go back to the many Indians who have struggled and sacrificed and bring their stories to life. It plays a very crucial role. समाप्त करते हुए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब अनसंग हीरोज़ के बारे हम बात करते हैं, जैसे कि समीर जी ने और दीपक जी ने कहा, खास करके जनजाति समाज के जो हीरोज़ हैं, they have been extra neglected. And after independence also. But before independence, of course, particularly when communications were primitive, when distances made a huge difference, ये सब कहानियाँ सामने लाने के लिए genuine difficulties भी थे, लेकिन मानसिकता भी था कि इनको सामने ना लाया जाए, जिसके बारे हम चर्चा कर रहे थे. So, in conclusion, I would like to thank the authors again. I would like to thank Rupa. Rupa, also my own publisher. Have published 2 of my books. Dhanyavad. Jai Hind, Jai Bharat.